بلیٹن کے آغاز میں خبر شامل کرتے ہیں۔ جہلم میں سلنڈر دھماکہ ہوا ہے۔ جی ٹی روڈ پر قائم ہوٹل کی 3 منزلہ عمارت گر گئی ہے۔ 6 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ابتدائی تحقیقات میں معلوم ہوا ہے کہ دھماکہ ہوٹل کی بیسمنٹ میں قائم LPG شاپ میں ہوا ہے۔ ایک سلنڈر پھٹنے کے بعد کئی سلنڈر پھٹے۔ ریسکیو آپریشن کہاں تک پہنچا ہے اور کیا امدادی کارروائیاں جاری ہیں، یہ جانتے ہیں بول نیوز کے نمائندے یاسر فہمید سے۔ یاسر بتائیے کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، جی ٹی روڈ مقام پر 3 منزلہ عمارت اس وقت منہدم ہو گئی جب ایک سلنڈر کا دھماکہ ہوا۔ یہ سلنڈر کا بلاسٹ بتایا جا رہا ہے، مگر عینی شاہدین کے مطابق جب یہ دھماکہ ہوا تو جتنے بھی آس پاس کے گھر ہیں ان کی کھڑکیاں اور دروازے لرز اٹھے، جبکہ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ یہ سلنڈر کا عام دھماکہ نہیں لگتا۔ اس چیز کو پرکھنے کے لیے مختلف ٹیمیں بھی یہاں پہ پہنچ چکی ہیں، بم ڈسپوزل اسکواڈ بھی یہاں پہ پہنچ چکا ہے، فورینزک کی ٹیمیں بھی پہنچ چکی ہے۔ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے تو امدادی کاروائیاں بھرپور طریقے سے جاری ہے۔ بیسمنٹ کا چھت کاٹا جا رہا ہے۔ بیسمنٹ کے چھت کاٹنے میں ابھی آدھے سے پونا گھنٹہ لگ سکتا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ 2 افراد جو ہیں وہ ابھی بھی ملبے تلے موجود ہیں۔ اس وقت جو ہے وہ 6 افراد کی جاں بحق ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ زخمیوں کو DHU اسپتال ریفر کیا گیا ہے، جبکہ مزید جو شدید زخمی ہیں ان کو راولپنڈی ریفر کر دیا گیا ہے۔ میرا کیمرہ مین ایک دفعہ آپ کو پھر دکھائے کہ ابھی کوئی اطلاعات آ رہی ہے کہ ریسکیو اہلکار جو ہے وہ کسی ملبے تلے دبے ہونے کے شخص کی جو ہے نا وہ ان کو اطلاعات آ رہی ہیں، اور چھت کو کاٹنے میں اس لیے زیادہ دیر لگ رہی ہے کیونکہ گراؤنڈ فلور کا جو چھت ہے وہ بیسمنٹ کی چھت کے اوپر گرا ہے، جس کو کاٹنے میں دشواری کا سامنا ہے۔ 1 گھنٹہ مزید بتایا جا رہا ہے کہ 1 گھنٹہ مزید اس ریسکیو آپریشن کو مکمل ہونے میں لگے گا۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا یاسر۔ جہلم جی ٹی روڈ پر ہوٹل کے کچن میں سلنڈر دھماکہ، جی ٹی روڈ کو ایک طرف سے بند کیا گیا ہے۔ ریسکیو آپریشن 6 گھنٹے سے جاری ہے۔ ریسکیو آپریشن کی وجہ سے ٹریفک جام ہے۔ بین الصوبائی رابطوں کے وزیر احسان مزاری نے صاف یہ کہہ دیا ہے کہ اگر بھارت ایشیا کپ کے لیے پاکستان نہیں آئے گا تو ہم ورلڈ کپ کے لیے بھارت نہیں جائیں گے۔ احسان مزاری کے بھارتی اخبار کو انٹرویو نے بھارتیوں کو صدقے میں ڈال دیا ہے۔ پاکستان کی شرکت اور ورلڈ کپ پر سوالیہ نشان بن گیا۔ احسان مزاری یہ کہتے ہیں کہ اگر ایشیا کپ میں ہائیبرڈ ماڈل استعمال ہو سکتا ہے تو ورلڈ کپ میں بھی ہو سکتا ہے۔ ایشیا کپ کی طرح ہائیبرڈ ماڈل کے تحت پاکستان کو بھی غیر جانبدار مقام کی درخواست کرنے کا حق حاصل ہے۔ اگر بھارت اپنے ایشیا کپ کے میچز کسی غیر جانبدار مقام پر کھیلنے کا مطالبہ کر سکتا ہے تو ہم بھارت میں ہونے والے ورلڈ کپ کے لیے بھی یہی مطالبہ کریں گے۔ پاکستان ایشیا کپ کے میزبان ہے اور تمام میچز کروانے کا حق رکھتا ہے۔ اٹک فتح جنگ تاجہ بارہ میں خاندان کے لوگوں کا خون سفید ہو گیا۔ بیٹوں نے ماں کے ساتھ مل کر والد کو تشدد کر کے قتل کر دیا۔ قتل کی واردات کے بعد دونوں ملزم بیٹے ماں کے ساتھ فرار ہو گئے۔ واقعہ گھریلو جھگڑے کے باعث پیش آیا۔ مقتول امیر گل کی لاش قانونی کارروائی کے لیے THQ اسپتال منتقل کر دی گئی۔ پولیس ملزمان کی تلاش کے لیے چھاپے مار رہی ہے۔ کراچی میں نیپا پل کے قریب رہائشی عمارت کے فلیٹ میں نقب زنی کی واردات۔ نامعلوم ملزم فلیٹ کا تالا توڑ کر رقم اور زیورات چوری کر کے فرار ہو گئے۔ نقب زنی میں ملوث مبینہ ملزمان کی CCTV فوٹیج بھی منظر عام پر آ گئی ہے۔ فیملی آج صبح پکنک پر روانہ ہوئی تو ملزمان نے گھر کا صفایا کر دیا۔ متاثرہ شہری نے پولیس کو اطلاع کر دی۔ پولیس کے مطابق 2 لاکھ روپے نقد رقم اور طلائی زیورات چوری کیے گئے ہیں۔ کرائم سین یونٹ نے فلیٹ سے شواہد اکٹھے کر لیے۔ فلیٹ کا خاکروب بھی واردات کے بعد سے لاپتہ ہے۔ پولیس نے واردات کی تفتیش شروع کر دی۔ 9 مئی کے منصوبہ ساز سہولت کار اور ہینڈلرز کو 2 ٹوک پیغام ہے کہ ان کی ہر سازش کچل دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم کی شدید مذمت۔ بیان میں کہا کہ 9 مئی کے یوم سیاہ کے لیے بھی ایسے ہی ذہن سازی کی گئی تھی۔ آرمی چیف اور فوج کے خلاف مذموم شر انگیز میڈیا مہم شیطانی ذہن کی منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے۔ سازشی ذہن اور عناصر سیاسی اور معاشی استحکام کے خلاف پھر سے سرگرم عمل ہیں۔ کراچی میں بجلی اور پانی کی عدم فراہمی کے خلاف عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ ناظم آباد نمبر 2 پاپوش نگر اور اورنگی ٹاؤن کے رہائشیوں نے احتجاج کے دوران سڑکیں بلاک کر دیں، جس سے ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی ہے۔ ناظم آباد میں پولیس سے مذاکرات کے بعد مظاہرین منتشر ہو گئے اور سڑک کو کھول دیا۔
बिजली दो पानी दो, के इलेक्ट्रिक नामंजूर, ओवर बिलिंग नामंजूर। बिजली और पानी की बंदिश पर कराची के अवाम का पारा हाई। नाजमाबाद, पापोश नगर और औरंगी टाउन में एहतजाज। नाजमाबाद नंबर 2 पापोश कॉलोनी के रिहायशी बिजली और पानी की अदम फराहमी के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने रुकावटें खड़ी करके सड़क बंद कर दी और के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शदीद नारे लगाए। पुलिस मुज़ाकरात करने पहुंची और मुजाहिरीन को यकीन दहानी कराई, जिस पर वो पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। उधर औरंगी टाउन 5 नंबर चौक के करीब भी अवाम ने पानी की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाज किया। इलाका मकीनों का कहना था कि 1 माह से पानी फराहम नहीं किया जा रहा। मुजाहरे में खवातीन की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। मुजाहिरीन ने दोनों अतराफ की सड़कें ब्लॉक कर दी। एक तरफ पसीना निकाल देने वाली गर्मी तो दूसरी तरफ हुकूमत की बेहिसी। पावर प्लांट्स अपनी मुकम्मल इस्तेदाद पर नहीं चलाए जा रहे। मुल्क में बदतरीन लोड शेडिंग ने आवाम को बेहाल कर दिया। छोटे शहरों और देहातों में लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे से भी तजावुज कर गया। दीगर इलाकों में भी 8 घंटे की लोड शेडिंग मामूल बन गई। पंजाब में बारिशों के बायस हादसात का सिलसिला जारी है। अब तक 2 दर्जन के करीब अमवात हो चुकी हैं। लाहौर के इलाके शाहगोर पीर दरबार के करीब घर की दीवार गिर गई। दीवार गिरने के नतीजे में मलबे तले दबकर 10 साला अमीर अली जाँ बहक हो गया। 30 साला जुनैरा जख्मी हुई। जाँ बहक बच्चे और जख्मी बच्ची को हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। भारतीय आबी जारियत की वजह से दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। दरियाए सतलुज में आम तौर पर पानी की सतह 5 फुट तक होती है, जो कि इस वक्त 12 फुट से जायद हो गई है। सतलुज की सूरत हाल क्या है, जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज मेहर अब्दुल रहमान से। जी बताइए, क्या तफसीलात हैं? जिस वक्त में दरियाए सतलुज के किनारे पर मौजूद है, सतलुज में अगर सैलाब की बात की जाए तो ये दरिया जो मामूल के मुताबिक 5 फुट के करीब इसमें पानी आम रूटीन में रहता है, मगर इस वक्त इस दरिया की जो सूरत हाल है, कुछ पानी भारत की तरफ से भी इसमें छोड़ा गया और बारिशों के पानी की वजह से इस वक्त ये 12 फुट की बुलंदी पे पानी जो इसमें चल रहा है। इस पानी की वजह से दरिया के किनारे जो आबाद फसलें थी वो बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो चुकी है। फसलों में भी कई फुट पानी जमा हो चुका है। अगर बात की जाए चंदा सिंह की, इसके साथ दूसरे गांव हैं, मब्बो की है, भिखीविंड है, इन गाँवों में अगर और मज़ीद पानी ना छोड़ा गया इंडिया की तरफ से, जिसको हम आबी जारियत भी कह सकते हैं, ये पानी मज़ीद अगर इंडिया ना छोड़े तो सूरत हाल कंट्रोल में है। मगर ये जो PDMA की तरफ से बताया जा रहा है कि अगर पानी 19 फुट से ज़्यादा की सतह पर जाएगा तो फिर ये दरिया जो है सैलाबी सूरत हाल में आएगा और फिर हर तरफ तबाही का मंजर होगा और तमाम फसलें। शुक्रिया आपका अब्दुल रहमान। और पंजाब और मुल्क के दीगर इलाकों में प्री मानसून बारिशों ने क़यामत मचा दी है। मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश जारी है। लाहौर में गाड़ियां पानी में तैरने लगी। पंजाब में 4 रोज में बारिश के दौरान अमवात की तादाद 20 हो गई। बलोचिस्तान में भी गली महल्ले पानी में डूब गए। जैकबाबाद समेत अंदरूनी सिंध भी बादल खुलकर बरसे। थरपारकर में 112 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। कराची में हल्की बारिश के बाद मौसम फिर गर्म हो गया। आज भी कराची में हल्की बारिश का इम्कान है। पाकिस्तान में प्री मानसून अपने जोबन के साथ जलवागर। पंजाब के मैदानी और बालाई इलाकों में खुलकर बादल बरसे। रिकॉर्ड बारिश ने लाहौर को पानी पानी कर दिया। मुतअद्दिद अफराद की जान चली गई। मुल्तान, फैसलाबाद, साहिवाल और दीगर शहरों में भी अब्र करम ने नदियां बहा दी। उधर बलूचिस्तान में जाफराबाद, डेरा अलैयार, झल मक्सी, बोलान और दीगर शहरों में तेज बारिश से सड़कें डूब गईं। कई इलाकों का जमीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया। सिंध के शहर। खबर आपको देखे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात में अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ 13 मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने के लिए इस्लामाबाद में DIG ऑफिस में पेश हुए। आजम से पुलिस की GIT ने तफ्तीश की। GIT में पुलिस अफसरान के अलावा हसास इदारों के 2 अफसरान भी शामिल थे। चेयरमैन PTI ने इस्लामाबाद पुलिस के तमाम मुकदमात से मुतालिक सवालात के जवाब दिए। और लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में तोड़फोड़। वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट का PTI के हामी पर जुर्माना मुआवजा अदा करने का हुक्म। आमिर वसीम चौधरी ने चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी के बाद कमीशन में तोड़फोड़ की थी। हाई कमीशन ने 18 मई की शाम पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी। आमिर वसीम पर क्रिमिनल डैमेज की दफात लगाई गई थी। आमिर वसीम ने पहले अदालत में जुर्म कबूल करने से इनकार किया था। शवाहिद पेश किए जाने पर आमिर वसीम ने जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने 18 मई के शाम आमिर वसीम को हिरासत में लिया मगर जमानत पर रिहा कर दिया। PTI हामी आमिर वसीम पाकिस्तान हाई कमीशन को नुकसान का मुआवजा अदा करेंगे।
सोशल मीडिया पर हुकूमत और पाक फौज के खिलाफ मुहिम जारी है। मरियम औरंगजेब का इस्लामाबाद में तकरीर से खिताब कहा 4 साल मुल्क में नफरत और अदम बर्दाश्त के बीज बोए गए, हर इदारे को बर्बाद किया गया, PTV और रेडियो पाकिस्तान को भी न बख्शा गया। ये इदारे महज इमारतें नहीं, तारीखी विरसे हैं। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ी। उन्होंने ऐलान किया कि मुल्क के छोटे बड़े शहरों में सिनेमा और थिएटर्स बनाए जाएंगे। 4 साल नफरत के बीज बोए गए, अदम बर्दाश्त के बीज बोए गए, गाली गलोच के बीज बोए गए, और जिस तरह एक एक्सट्रीम लेवल के ऊपर चीज़ों को ले जाकर इस मुल्क के अंदर नफरत फैलाई गई, ये सबसे अहम तरीन वक्त है कि पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के नौजवान को एक ऐसा ऑल्टरनेटिव दिया जाए, एक ऐसा ऑल्टरनेटिव दिया जाए जिसके ज़रिए पाकिस्तान के जो बच्चे हैं वो मस्बत जो एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर अपने आप को इंगेज कर सकें। 2017-2018 में पाकिस्तान की पहली कल्चर पॉलिसी और पाकिस्तान की जो फिल्म पॉलिसी थी उसकी बुनियाद रखी गई थी, और 2018 का जो बजट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून देकर गई थी उसमें उस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन का आगाज़ हो चुका। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह हर अदारे को तबाह किया गया, 4 साल ना PTV छोड़ा गया, PTV को ए स्पोर्ट्स के हवाले कर दिया, PTV स्पोर्ट्स को, ताकि ये अदारा बर्बाद हो जाए और किसी तरह उस लेवल पर आ जाए जो उस वक्त के वजीर थे कि इसकी नीलामी। मेयर बन जाने से शहर का मालिक नहीं बन जाता। खालिद मकबूल सिद्दीकी का पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी पर कड़ी तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि सारे इख्तियारात एक जमात को दे दिए गए जिसके पास 50 साल से कराची का मैंडेट नहीं रहा। सवाल उठाया कि 100 यूसिस की डकैती के बाद जमात इस्लामी और PTI ने बल्दियाती इंतखाबात को कैसे तस्लीम किया। मजीद कहा कि किसी के साथ मुकमुका कराकर मेयर हमारा भी बन जाता। MKM आइंदा किसी के साथ डिप्टी मेयर का मुआहदा नहीं करेगी। मेयर बन जाने से शहर का मालिक नहीं बन सकता। इस शहर के सारे वसाइल और सारे इख्तियारात किसी भी वजह से एक जमात को दे दिए गए हैं जो 50 साल से, जिसके बाद कराची का कोई मैंडेट ही नहीं रहा। सवाल जमात इस्लामी से बनता है। अगर कराची के बारे में कोई दावा PTI का है तो PTI से बनता है। आपने 100 यूसियों की डकैती के बावजूद इस इंतखाबात तस्लीम कैसे कर दिया? किसी के साथ मुकमुका कराकर मेयर तो हमारा भी बन जाता। याद रखिएगा, कराची के मेयर बनने के लिए कभी को किसी और के साथ डिप्टी मेयर का भी मुआहदा MKM नहीं करेगी इंशाअल्लाह ताला। सिंध हुकूमत का सखर और नवाबशाह में इकोनॉमिक जोन कायम करने का ऐलान। वज़ीर तलाश शर्जील मेमन कहते हैं कि सरमायाकारी होगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। दुनिया भर के सरमायाकारों को पाकिस्तान आने की दावत देंगे। कल मजीद बसें कराची पहुंच जाएंगी जिन्हें कराची समेत सिंध के दीगर अजला में चलाया जाएगा। हमारा मकसद लोगों की जिंदगियां आसान बनाना है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा कौमी मफाद का पैगाम दिया। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कुछ एक बसेस चलाकर अब खामोश होकर बैठ गया है, ऐसा कतन नहीं है। मजीद बसेस जो हैं वो आ रही हैं, और जिस तरह चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब का विजन है, और वज़ीर आला साहब की खुसूसी तौर पर ज़ाती दिलचस्पी की वजह से ही सारी जो बसेस जो हैं वो कराची और सिंध के दीगर अजला में जो है वो चलाई जाएंगी। पूरे पाकिस्तान के लोग इलाज के लिए, दिल के इलाज के लिए, बाकी इलाजों के लिए, कैंसर के इलाज के लिए, लिवर ट्रांसप्लांट के लिए, लंग्स ट्रांसप्लांट के लिए सिंध सूबे का रुख कर रहे हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, मैं ये कहता हुआ आया हूँ कि कुछ बहस चल रहे थे कि जी हेल्थ कार्ड जो है कितने लोगों को पाकिस्तान में मिले PTI की गवर्नमेंट में, लेकिन मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 22 करोड़ लोगों को हेल्थ कार्ड दिया। जहांगीर तरीन के भाई आलमगीर तरीन ने मौत से पहले मंगेतर से फोन पर बात की। पुलिस ने खातून से मुलाकात करके तफसीलात हासिल की। खातून ने इन्वेस्टिगेशन पुलिस को बयान रिकॉर्ड करवा दिया कि आलमगीर तरीन से शाम 4 से 4:30 बजे तक बात होती रही। फोन पर रूटीन की बातें हुई। उसी रात को 1 से 2 बजे के दरमियान आलमगीर ने मुबैना खुदकुशी कर ली। पुलिस को कत्ल के ताहाल कोई शवाहिद नहीं मिल सके। फॉरेंसिक रिपोर्ट और पोस्टमार्टम के बाद तफ्तीश का दायरा कार मजीद वसी किया जाएगा। खबर यह है कि मकरान कोस्टल हाईवे पर विसौल के करीब ट्रेलर उलट गया। ट्रेलर में ईरानी डीजल भरा हुआ था जिसमें आग लग गई। आग लगने से 3 अफराद झुलस कर जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद की शनाख्त मीरदाद और अमान के नाम से हुई है। तीनों अफराद झावरान के रिहायशी हैं। आग लगने से ट्रेलर भी जलकर राख हो गया।
गुजरांवाला में सियालकोट रोड पर साइकिल बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगने से 6 अफराद झुलस गए। गुजरांवाला में आग पर काबू पा लिया गया। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। गुजरांवाला के इलाके अलीपुर छठ में ऑयल रिफाइनरी के बॉयलर में अचानक आग भड़क उठी। टैंक में 25,000 लीटर तेल मौजूद था। फायर ब्रिगेड ने 4 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया, जबकि कूलिंग का अमल जारी है। FIA ने इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अहम मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम मोहम्मद सलीम सुनियारे को गुजरात से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम यूनान कश्ती हादसे के मरकजी मुलजिम आसिफ सुनियारे का भाई है। मुलजिम ने मुल्तानियों को गैर कानूनी रास्ते से यूरोप भिजवाने के लिए करोड़ों रुपए बटोरे। मुलजिम के खिलाफ 9 मुकदमात FIA गुजरात सर्कल में दर्ज हैं। मुलजिम हुंडी के जरिए अपने भाई आसिफ को पैसे भिजवाता था। हुकूमत के दावे धरे के धरे रह गए। 2 सूबों की पुलिस कच्चे के डाकुओं पर काबू पाने में नाकाम हो गई। कंदकोट में अगवा होने वाले 3 पुलिस एहलकारों को बाजियाब नहीं कराया जा सका। उधर राजनपुर से भी डाकुओं ने 2 सरकारी मुलाजिमीन को अगवा कर लिया। ओबारों में भी गुज़श्ता रोज डाकुओं ने तावान न मिलने पर रावलपिंडी के टैक्सी ड्राइवर को कत्ल कर दिया था। हुकूमत की लापरवाही और नाअहली अवाम के लिए कड़ा इम्तिहान बन गई। सिंध और पंजाब में कच्चे के डाकुओं ने अपना राज कायम कर लिया। कंदकोट में अगवा होने वाले SHO और 2 पुलिस एहलकारों को ताहाल बाजियाब नहीं कराया जा सका। कच्चे के जंगलात में जारी पुलिस ऑपरेशन हमेशा की तरह नाकामी से 2-4 नजर आने लगा। इधर राजनपुर से भी डाकुओं ने 2 सरकारी मुलाजमीन को अगवा कर लिया। दोनों अफराद पार्कों के मुलाजिम हैं, जो तेल पाइपलाइन पर मामूल के गश्त पर थे। डाकू दोनों मगवियों को कच्चे के जंगलात में लेकर फरार हो गए। मगवियों की बाजियाबी के लिए पुलिस टीम तश्कील दे दी गई है। इधर ओबाड़ों में कत्ल होने वाले रावलपिंडी के टैक्सी ड्राइवर के कातिलों को भी ताहाल गिरफ्तार न किया जा सका। टैक्सी ड्राइवर को तावान न मिलने पर कत्ल कर दिया गया था। अहले खाना कहते हैं सिंध हुकूमत को दरख्वास्त जमा कराई थी, लेकिन इनकी कोई मदद नहीं की गई। कराची के गुलिस्तान जौहर में खातून को जिनसी हरासा करने वाले मुलजिम का तस्वीरी खाका भी तैयार कर लिया गया। तस्वीरी खाके और मुख्तलिफ CCTV फुटेजेस की मदद से मुलजिम की तलाश तेज कर दी गई है। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुबैना मुलजिम से 60% तक मुशाबहत रखता है। मुख्तलिफ CCTV फुटेजेस और जियो फेंसिंग का अमल भी जारी है। गुज़श्ता रोज शहरियों ने 3 अफराद की निशानदही की थी। तीनों अफराद से तफ्तीश की गई, जिन्हें बाद में रिहा कर दिया गया। जाए वकुआ और अतराफ के 300 अफराद के बयानात कलम बंद किए गए। ताहाल किसी भी शख्स ने मुलजिम को शनाख्त नहीं किया। और यहाँ आपको बताएं कि मुख्तलिफ तबका हाई फिकर और सियासी शख्सियात का जिना हाउस लाहौर का दौरा। हुकूमत पाकिस्तान और अदालतों से जल्द इंसाफ का मुतालबा कर दिया। वफ्द का कहना था कि शरपसंदों ने अपने ही कायद के घर को बेदर्दी से जलाया। पाक आर्मी और शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करना किसी लिहाज से काबिल माफ़ी जुर्म नहीं। हम अपनी अफवाज के साथ शाना बशाना खड़े हैं और रहेंगे। और जिन लोग और ये हंसता बसता हमारे कायद का घर, ये कोर कमांडर हाउस है, यहाँ उन्होंने जिस बेदर्दी से, जिस जालिमाना अंदाज में और जिस सफाकियत का मुजाहरा किया, हम तमाम लोग पाकिस्तानी अदलिया से और तमाम मुताल्लिका इदारों से ये अपील करते हैं कि उन मुजरमान को कैफरे किरदार पे पहुँचाया जाए। दुश्मनाने पाकिस्तान ने और अगयार ने जो पाकिस्तान की शाख पर, इसकी शान पर, इसके वकार पर हमला किया है, हम ये अहद करते हैं कि इसके लिए हम पाक फौज के साथ खड़े हैं। ये सानिया 9 मई जो है ये स्याह बाब की तरह तारीख में लिखा जाएगा और हम नहायत ही शर्मिंदा हैं। ये जो लोग मुलव्वस हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं तमाम अदारों से उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इबरतनाक सजा दी जाए। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शोहदा को पूरी कौम का सलाम। बहादुर और निडर कैप्टन मोहम्मद अम्मार हुसैन शहीद ने दिफाए वतन की खातिर शहादत को गले लगाया। कारगिल जंग में शहीद कैप्टन मोहम्मद अम्मार के लवाहिकीन का कहना है कि 9 मई को शहीदों की यादगारों की तोड़ फोड़ की गई। कायदे आजम की यादगार जिना हाउस को तोड़ा गया। मुलव्वस अफराद को सजा मिलनी चाहिए। अब जब ये 9 मई का वाक़या हुआ है तो जब हम देखते हैं तो हमें बहुत अफसोस होता है कि शहीद इतना जुल्म किया गया। मैं तो जुल्म कहूँगी इसको, ये तबाही जो की है, इतना जुल्म किया है इन्होंने शहीदों की यादगारों को और उन चीज़ों को इन्होंने तोड़ा फोड़ा। और ख़ास तौर पे जिना हाउस कायदे आज़म की यादगार थी, उसको तोड़ा फोड़ा, बड़ा जुल्म किया इन्होंने। अम्मार को शुरू से ही फ़ौज का बहुत शौक़ था। 14 साल की उम्र में वो मिलिट्री कॉलेज में दाखिल हुआ।
5 साल वहाँ पढ़ने के बाद फिर PMA में चले गए। PMA की 2 साल की ट्रेनिंग के बाद उनको 63 FF बड़ी अच्छी यूनिट मिली। अल्लाह की राह में शहीद होना था, उन्होंने बहुत सख्त ट्रेनिंग की, तैयारी की, SG की ट्रेनिंग तो आपको पता है। 1 कमांडो बटालियन से वॉलंटियर होके तो करगिल वार में शामिल हुए। 9 मई के हवाले से मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप लोग अगर यंग जनरेशन को अच्छी बातें सिखाएंगे, शहीद होना, आर्मी का एहतराम करना, डिसिप्लिन करना, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा, बजाय इसके कि आप उसको दुश्मन जो कुफ्ते हैं उनका अलग हार बना लें। 9 मई के हवाले से हमारे दिल में खदशात मौजूद हैं। जिस तरह हमने रिएक्शन देखा लोगों का, हम बस एक शहीद की बही होने के नाते हमारे दिल में एक शकूक उभरा है कि हम शोधा की उस तरह कुर्बानियों को ज़ाया नहीं करना चाहिए। हमें वाकई इस बात पे बहुत फ़ख्र होता है कि आर्मी ने शोधा का जिस तरह एहतराम रखा है, इसकी मिसाल कहीं नहीं मिली। और खबर है कि टोबा टेक सिंह में थप्पड़ों वाली कबड्डी के दौरान खिलाड़ी जाँ बहक हो गया। ये वाकया मेला हंदाल कंदाल में थप्पड़ वाली कबड्डी मैच के दौरान पेश आया। खिलाड़ी ने अपने मद्देमुकाबिल खिलाड़ी जाकिर हुसैन पर थप्पड़ों की बारिश कर दी, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। कबड्डी खेलते हुए खिलाड़ी जाकिर हुसैन अखाड़े में ही गिर गया। खिलाड़ी को तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की गई, मगर वो जांबर न हो सका। फैसलाबाद प्रेस क्लब में मैंगो पार्टी का एहतमाम किया गया। फलों के बादशाह और खुशकपियों ने तफरीह का मजा दोबाला कर दिया। मजीद जानते हैं ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर से। जी बिल्कुल, गर्मी का मौसम है, ऊपर से फलों के बादशाह आम का सीज़न भी चल रहा है, तो उसके साथ मैंगो पार्टी ना हो ये हो नहीं सकता। हमने यहाँ पर देखा है कि फैसलाबाद प्रेस क्लब की जानिब से मैंगो पार्टी का एहतमाम किया गया है। तमाम सहाफ़ी जो रोज़मर्रा अपनी मसरूफियात में रहते हैं, आज उनके लिए ये एक तफरीह का एहतमाम किया है। मैंगो पार्टी है, साथ पूल पार्टी भी चल रही है, तो बड़ा कम ही वक्त मिलता है एक दूसरे के साथ मिल बैठने का। तो मेरे साथ सदर प्रेस क्लब शाद अली साहब मौजूद हैं। देखिए जी, ये एक बड़ा अच्छा मौका है कि दोस्तों को मिल बैठने का मौका मिला है, और जो गर्मियों की सौगात हैं आम, जिस तरह फैसलाबाद प्रेस क्लब ने पहले एक स्पोर्ट्स इवेंट करवाया था, लोगों ने बड़ा एंजॉय किया था, और उसके बाद आज ये है मैंगो पार्टी है, और करीब एक हम टूर का भी ऐलान करेंगे। बहुत शुक्रिया गुलाम दस्तगीर। खालिस्तानी हरदीप सिंह के कनाडा में कत्ल पर सिखों ने भारतीय हाई कमीशन लंदन पर एहतजाज किया। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के सामने सिखों की बड़ी तादाद जमा हुई और खालिस्तान टाइगर फोर्स के सरबराह हरदीप सिंह के कत्ल के खिलाफ नारे लगाए। मुजाहिरीन ने कहा कि भारत सिखों को खौफजदा करना चाहता है, लेकिन उन्हें खौफजदा करके खालिस्तान की आज़ादी से बाज नहीं रखा जा सकता। हरदीप सिंह को कनाडा में गुरुद्वारे के बाहर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। मारूफ अदाकारा महविश हयात ने बरतानिया से अपनी प्रोडक्शन कंपनी लॉन्च कर दी। सोशल मीडिया पर ऐलान करते हुए कहा कि कंपनी के जरिए मगरबी मीडिया में पाकिस्तान और मुसलमानों के दुरुस्त तशख़्ख़ुस को उजागर करेंगी। पेचीदा मसाइल पर अकेले गुफ्तगू करना काफ़ी नहीं, अगर मुसलमानों ने मगरब में अपने मुतालिक ख्यालात को तब्दील करना है तो इसके लिए उन्हें खुद मैदान में उतर कर काम करना होगा।